नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बजने वाले हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव प्रचार में भी चौथे चरण की हिंसा हावी है। कूच बिहार के शीतल कुंची की घटना को लेकर के दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कसूरवार लगातार ठहरा रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में टीएमसी प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। ममता बनर्जी पर यह रोक आज रात 8 बजे से लेकर के कल रात 8 बजे तक रहेगी। মানুষ যখন ভোট দিতে যাচ্ছে, ভোট হচ্ছে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ফেস্টিভ্যাল। দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ ডেমোক্রেসি ইজ দ্য ভোট ইলেকশন। সেখানে মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ভোট বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, চক্রান্ত করা হচ্ছে, ভোটের লাইনে গুলি করে দেওয়া হচ্ছে। কালকে যে 4 জন মারা গেছে, 20 থেকে 25 বছর মাত্র বয়স। আর যদি বাড়াবাড়ি করে শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। ওই দুষ্ট ছেলেটা কালকে গুলি খেয়েছে কুচবিহারের শীতলকুচিতে। এই দুষ্ট ছেলেটা থাকবে না বাংলায়। সবে শুরু হয়েছে। যারা ভেবেছে সেন্ট্রাল ফোর্স বা বন্দুকটা দেখাবার জন্য নিয়ে এসছে, তারা বুঝেছে ওর গুলির গরম কিরকম। আর এটা সারা বাংলায় হবে। उत्तर बंगाल में चौथे चरण का चुनाव हुआ। दीदी ने यहाँ के लोगों को उकसाया, कहा सीआरपीएफ को घेर लो, बूथ लूट लो, और उनकी सुनकर कुछ युवा चल पड़े, हथियार खींच लिए, गोलीबारी हुई, 4 लोगों की दुखद मौत हो। दीदी, अगर आप भाषण ना करती ना तो 4 युवाओं की मौत न होती। आप उनको न उकसाती तो 4 युवाओं की मौत न होती। खुलेआम कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग केंद्रीय वाहिनी का घेराव करेंगे और दीदी के बाकी समर्थक अंदर घुस के छप्पा वोट डालेंगे। चर्चा है कि कुछ बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। লজ্জা করে না। আর নরেন্দ্র মোদী ক্লিন চিট দিয়ে চলে গেছে। এটা প্রাইম মিনিস্টার দেশের লজ্জা হয়। একটা হোম মিনিস্টার কনস্পিরেসি করে আর একটা প্রাইম মিনিস্টার লজ্জাও করে না, গুলি করে মানুষ মারে। জানে হেরে যাবে, পুরো হেরে গেছে, 4 ফেজে হেরে গেছে এবং হেরে গেছে জানে বলে ওই গুলি চালাচ্ছে, বোমা চালাচ্ছে, বন্দুক চালাচ্ছে। भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। 130 से ज्यादा। कल भी एक कार्यकर्ता मारा गया, परसों। मगर दीदी उसके लिए नहीं कहती कि इसकी जांच हम सीआईडी क्राइम को देंगे। मगर आपको मैं कहता हूं, तृणमूल के गुंडों, कान खोलकर सुन लो, कब तक बचोगे? 2 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। एक एक को चून कर जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 72 ঘন্টা বলছে যাওয়া হবে না, ডেড বডি দেখা হবে না। আমি বললাম আচ্ছা, ডেড বডিতে এত ভয়? মারতে ভয় নেই? ইটস এ ব্রুটাল মার্ডার, জেনোসাইড, গণহত্যা, গণতন্ত্র হত্যা, ভোটের লাইনে। লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা। আমাকে বলে কিনা যেতে দেবে না, কিন্তু আমি কি করেছি আপনারা জানেন তো? আমি হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আমি শিলিগুড়িতে বসে প্রেস কনফারেন্সের সামনে ভিডিও কানেক্ট করে আমি সব কথা বলে এসেছি। আমি যারা মারা গেছে তাদের পরিবারের সাথে আমি কথা ইতিমধ্যেই বলে এসেছি। আমার তৃণমূল কংগ্রেসে প্রায় 13 জন মারা গেছে, মার্ডার হয়েছে, ব্রুটাল কিলিংস হয়েছে। এটা চলতে পারে না, এই বিজেপি চলতে পারে না। এটা অঙ্গীকার করতে হবে, কসম খেতে হবে, প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, শপথ নিতে হবে। এই বিজেপিকে চাই না, এই বিজেপিকে চাই না, গুলিবাজদের চাই না, হত্যাকারীদের চাই না, দাঙ্গাবাজদের চাই না, রক্তবাজদের চাই না। বিজেপি দূর হটো, বিজেপি দূর হটো, বিজেপি
दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध, उनका गुस्सा, उनकी बौखलाहट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं। आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया। यानी आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। তাই আমাকে এত ভয়, তাই নিজেরা ভেতরে ভেতরে হচ্ছে ভয়, তাই রেগুলার চলে আসছে বাংলায় আমাকে ভ্যাংচাচ্ছে আর বলছে আমি তো সব জিতে গেছি। বুঝুন 4টে ফেজে ভোট হয়েছে, এখনো 4টে ফেজ বাকি আছে, এর মধ্যে উনি নাকি জিতে গেছেন। মানে ভগবান বেঁচে থাকলে বলতো যে ভাই তুমি সুপার ভগবান, ভাই আমি ভগবান নই। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम आएंगे, हम दिखाएंगे, हम देख लेंगे। খেলা হবে, জেতা হবে, দেখা হবে। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। अब आप बताइए, ये दीदी आपसे गुस्सा होगी या नहीं होगी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। সারা ভারতবর্ষকে একত্রিত করে আমরা সারা ভারতবর্ষ থেকে মোদিবাজিদের আমরা দূর হাঁটাবো, বাংলা থেকে, এই ভারতবর্ষ থেকে আমরা দূর হাঁটাবো বাংলার ইলেকশনের পরে। চ্যালেঞ্জ, বাংলাটা করে নিন, বাংলাটা করে নিন। চ্যালেঞ্জ যদি পারেন, রুখতে পারেন, চ্যালেঞ্জ করে গেলাম। বাংলা মোদিবাবু আপনি 1000টা মিটিং করলেও বাংলা পাবেন না, বাংলা মাকে পাবেন না। বাংলা আমার সোনার রত্ন, বাংলা আমার গর্ব, বাংলা আপনার সাথে যাবে না। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, जय बांग्ला। जो हमसे टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा। और याद रखिए कि रोशनी चाप से होता है, सितारों से नहीं, मॉब और तृणमूल से होता है, और बीजेपी से नहीं। बीजेपी एक गंदा पार्टी है, एक गंगाबाज पार्टी है, एक चोर का पार्टी है। बोलता है चौकीदार है, किसके लिए? चोर का चौकीदार है, डाकू का चौकीदार है। इधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। अमित शाह ने इस रोड शो में लाखों की भीड़ उनके इस रोड शो में नजर आई। सड़क के दोनों तरफ हजारों का हुजूम, हाथों में बीजेपी के झंडे और जुबान पर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे। 5वें चरण के मतदान के पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में रोड शो कर विरोधियों को दम दिखाया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जीत का जोश भरा। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर बंगाल क्या महत्व रखता है, यह 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ साफ पता चल गया था। जो किसी ने सोचा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया और लोगों के बीच एक मोदी लहर एक बार आप फिर देख
सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जी जान लगा दी है। उत्तर बंगाल में हिंदी भाषा भाषी लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूं तो इसे गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो का नाम दिया गया है, लेकिन इस बीच में पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा जोरों पे है कि ये महज रोड शो नहीं है, एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देखा जा रहा है। सिलीगुड़ी में अमित शाह के रोड शो के दौरान उमड़े जनसैलाब को अमित शाह ने बंगाल में परिवर्तन का सबूत बताया। भीड़ के जरिए ये मुनादी भी कर दी कि बंगाल में 2 मई को दीदी राज का जाना तय है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के तहत 17 अप्रैल को 45 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इस चरण में करीब 1 करोड़ 12 लाख मतदाता 319 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर कोरोना के डरावने आंकड़ों से महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे, लेकिन लोगों की लापरवाही अब भी कम नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच सरकार ना चाहते हुए भी लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं है। कोविड गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ये जो संक्रमण है और तेजी से बढ़ रहा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार, आप दिन भर ऑटो चलाते हो? हाँ। तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, आप मास्क नहीं लगाए हो? है ना, मास्क है ना हमारे पास, है ना, ऐसा है। अभी जस्ट निकाला मैं मास्क। अभी जस्ट निकाला? हाँ। पैसेंजर बैठता तो लगाते हैं? हाँ। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण महाराष्ट्र के अस्पतालों में बेड की किल्लत हो गई है और इसी के मद्देनजर नंदुरबार में ट्रेन में आइसोलेशन कोच बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि कई जगहों पर मरीज जमीन पर बैठने को मजबूर हैं, तो कुछ कुर्सी टेबल को बेड बना रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आ रहे हैं, जिससे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों का बुरा हाल हो चला है। चाहे बीएल के अस्पताल हो या फिर सर गंगाराम अस्पताल, कहीं भी मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। मरीज और उनके परिजनों का दर्द असहनीय हो चला है। बहुत सारे जो मरीज थे वो काउंटर पर खड़े थे ये जानने के लिए कि क्या बेड मिल सकता है या नहीं। यानी ये समझ आ गया कि दिल्ली के अस्पतालों में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर आपको बेड की दरकार है और आपका जो परिजन है या जो आपके जानने वाला मरीज़ है उसे अस्पताल में भर्ती होना है, तो दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं है। ऐसे में सोचना पड़ेगा सरकार को और केंद्र सरकार को भी कि वो बेड्स मुहैया कराएं, जिससे कि मरीज को तुरंत उपचार मिल सके। कैमरामैन मनु सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े सिहरन पैदा कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में कहीं भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। उम्मीदवार और उनके समर्थक बैंकों के बाहर भीड़ लगा रहे हैं, मास्क लगाना भी ये जरूरी नहीं समझ रहे। यूपी में पंचायत चुनाव के दंगल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंकों के बाहर सैकड़ों की भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मजाक बनकर रह गए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी है। यानी अब पंचायत चुनाव में एक साथ 5 से ज्यादा लोग प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन बैंकों के सामने लगी ये कतार इस बात की तस्दीक कर रही है कि ना तो यहाँ किसी को कोरोना की फिक्र है और न इसको लेकर जारी हुए सरकारी गाइडलाइंस की चिंता। क्या मामला है ये जो भीड़ लगी हुई है? ये प्रधान के जिला पंचायत के बीडीसी के फीस जमा हो रही है। अच्छा, फीस जमा हो रही है। कौन सा बैंक है? इलाहाबाद। कितनी देर से खड़े आप लाइन? हम तो खड़े यहाँ 1.5-2 घंटे। लापरवाही की यह तस्वीर यूपी के बाराबंकी की है। यहाँ भी बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया। लोगों को मास्क भी बोझ लगने लगा है। फतेहपुर तहसील में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के सामने लगी इस कतार में धक्का मुक्की हो रही है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशी जमा राशि और कैश भुगतान के लिए झुंड में इकट्ठा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ कोई गोले तक नहीं बनाए गए हैं। यानी बैंक प्रबंधन की लापरवाही भी साफ साफ दिख रही है। संगम नगरी प्रयागराज में भी लोग कोरोना के बढ़ते मामलों से बेपरवाह दिख रहे हैं। प्रयागराज की सड़कों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं।
न्यूज 24 ने जब लोगों से इस बाबत सवाल दागा तो वो मुंह छिपाकर भागने लगे। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 की बैठक ले रहे हैं, तो वहीं लखनऊ की सड़कों पर यूपी पुलिस लोगों को मास्क बांट रही है, लेकिन लोग बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अमीनाबाद बाजार में लेके आए हूं और आप देखिए कि यहाँ पर जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है वो फिलहाल बाजारों में देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ अब बाजारों में नजर आ रही है। हालांकि ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई थी कि लोग मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए, लेकिन आप बाजारों में देखिए पूरा बाजार बुरी तरह से भरा भीड़ भाड़ देखी जा रही है बाजारों में। यानी सोशल डिस्टेंसिंग जिसके पालन करने की बात कही जा रही है वो फिलहाल बाजारों में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो मास्क के इस्तेमाल की बात कही जाती है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो फिलहाल अभी यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें बाजारों में नहीं दिख रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।